السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی قوم کی زندگی کو طول دینے کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ٹیکس کے نظام کو اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ٹیکس چوری کو کسی بچے کے، نوزائیدہ بچے کے قتل سے بھی زیادہ بھیانک جرم تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف جب کوئی ایسا شخص، بزنس مین، کوئی بڑی شخصیت ٹیکس چوری میں ان کے ہاتھ آ جائے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں بدقسمتی سے جیسے ہم بہت سارے شعبوں میں پیچھے جا رہے ہیں، وہ چاہے تعلیم ہے، چاہے صحت ہے، اس میں یہ معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے نظام، یعنی کہ ٹیکس کی وصولی کا نظام، اس میں بھی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی دولت پر ٹیکس اس طرح ادا نہیں کر رہے، اور وہ بوجھ پھر غریب عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر جو کہ پیٹرولیم لیوی کی صورت میں کبھی ہم دے رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں دے رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کیوں ٹیکس وصولی کا سسٹم آج تک ٹھیک نہیں کر سکی، اگرچہ کہ اس کے لیے ایک وفاقی ٹیکس محتسب کی بھی باقاعدہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر عہدہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی طاقت اور اس کے اختیارات بھی سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ عرصہ قبل بنایا گیا تاکہ جو ٹیکس کے نظام میں جو لیکوناز رہ گئے ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کا احتساب کیا جا سکے۔ لیکن کیوں آج تک اس کا احتساب نہیں کیا جا سکا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں بڑی جانی مانی شخصیت ہے، ستارہ امتیاز ہیں، ہلال امتیاز ہیں، شاید یہ کسٹم سروس میں پہلے آفیسر ہیں جن کے پاس یہ دونوں اعزاز موجود ہیں، ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، یہ وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے پہ حال ہی میں ان کی تعیناتی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کسٹم سروس سے، یعنی وہ ایک ایسا ادارہ جو کہ ٹیکس وصولی کرتا ہے، اور میرے خیال میں وفاقی جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ وصولی کسٹم سروس کی ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے پہ فائز کیا گیا۔ اس سے پہلے پی ایس پی آفیسر اور پی ایس آفیسر یا ریٹائرڈ جج صاحبان اس عہدے پہ آتے تھے، اور شاید ان کو ٹیکس وصولی کے نظام کی وہ نو ہاؤ یا وہ علم نہیں تھا جو آپ کو ہے۔ اپنی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ؟ جی بہت شکریہ۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ آج سے 20 سال پہلے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کے پہلے وفاقی ٹیکس محتسب جسٹس صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور انہوں نے اس ادارے کو، اس کا آرڈیننس بنانے میں خاصا کام کیا۔ تو شروع میں ایز اسسٹنٹ کلیکٹر ان کے پاس پیش ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زیادہ 2 دفعہ پولیس افسر آئے، میرے جو پریڈیسیسر ہیں مشتاق سکیرا صاحب تھے، انہوں نے 4 سال وفاقی ٹیکس محتسب رہے۔ تو یہ میں ایک دن آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ پی ایم ہاؤس سے فون آ گیا کہ پی ایم آپ کو، جو پرائم منسٹر ہیں محترم عمران خان صاحب، وہ آپ کو وفاقی ٹیکس محتسب بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تھا، میری نوکری ابھی پڑی تھی، انہوں نے کہا آپ کو نوکری سے جو ہے ریزائن کرنا پڑے گا یا پری میچور ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں تیار ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے پھر پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا۔ اور بات یہ ہے نا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ایمبٹ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس افسروں کا احتساب کرنا، کہ ٹیکس سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، جو ڈیلے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کیا جاتا ہے، جو ایکسٹورشن ہوتی ہے، جو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، جو پروسیجرز غلط ہیں، جو ان کی پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کی ریمیڈیل میئرز، ان کی اصلاح کے لیے مطلب مختلف میئرز سجیسٹ کرنا، یہ کام ہے ٹیکس محتسب کا۔ تو آج تک جو لوگ مطلب لگائے گئے ایف ٹی او یا وفاقی ٹیکس محتسب، ان کا وہ ٹھیک ہے بہت ایکسپیرینس لوگ تھے، زیادہ تر یہاں وفاقی سیکٹری لیول کے، اور یہ میں میرا خیال ہے سب سے جونیئر موسٹ گریڈ 21 میں اور میں لگا ہوں، اور عمر میں بھی ان سے کم ہی ہوں۔ تو مگر یہ ہے کہ الحمدللہ میرا پیچھے 30 سال کا کسٹم ٹیکس میں کام کرنے کا جو ہے مطلب تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، مختلف سچویشن میں ایڈجوڈیکیٹ بھی کیا ہے، انفورسمنٹ پر ڈیوٹی بھی کی ہے،
एयरपोर्ट पे ड्यूटी की है, अपील्स पे भी कोर्ट की है, अपील में और जुडिकेशन की है, मतलब केसेस की। तो मुझे एक दफ्तर से उठ के मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 4 साल के लिए होती है, और इसमें आपको सदर पाकिस्तान आपसे हेल्प लेते हैं। तो मेरा ओथ हुआ 29 सितंबर को, जब सुबह के वक्त नोटिफिकेशन हो गया, और उसी दिन 4 बजे सदर पाकिस्तान ने मुझसे हल्फ लिया, और मैंने हल्फ जब हो गया तो फिर प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब से कॉल ऑन किया, और तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यही कहा कि भाई डॉक्टर साहब, शुरू में तो आपका नाम नहीं था, मगर जब प्राइम मिनिस्टर के पास हम गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि एक ही बंदे को लगाना है, वो डॉक्टर आसिम महमूजा है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कहते जी आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं कि आप काम करेंगे, इस इदारे को फाल इदारा बनाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल, बतौर कस्टम कलेक्टर मैं आपका पूरा कैरियर मेरी आंखों के सामने है, आपकी शोहरत बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत कम अरसा ऐसी पोस्टों पे रहने दिया गया जहां पर माल बनाया जाता था, जहां पे टैक्स चोरी होती थी, और जैसे ही आप लगते थे वहां पे कोई ना कोई बड़ा स्कैम सामने आ जाता था, जैसे कि 5 स्कैंडल आपने पकड़ा, और इस तरह के और बहुत सारे स्कैंडल जो आपने पकड़े, और उसके बाद आपको वहां से हटा दिया जाता था। और यही वजह है कि आप लाहौर में कलेक्टर अपील्स के उहदे पर शायद सबसे ज्यादा अरसे तक आपकी तैनाती रही, जिसपे कोई भी आपके ग्रेड 20 का कोई भी ऑफिसर वहां पे तैनात रहना नहीं चाहता। क्या आप ये समझते हैं कि जब आप ये एहतसाब शुरू करेंगे इन्हीं करप्ट अफसरान का, चाहे वो इनलैंड रेवेन्यू से हैं, चाहे वो कस्टम से हैं, आपको काम करने दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा जी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है ना, ये अल्लाह की मेहरबानी से मिली है। कोई मैंने इसके लिए ना ख्वाहिश का इजहार किया, ना भी प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, तो इसी तरीके से है कि इंशाल्लाह मैं काम करूंगा और काम करके दिखाऊंगा। मैंने सदर पाकिस्तान से वादा किया कि इंशाल्लाह मैं इस इदारे को एक फाल इदारा बनाऊंगा। उन्होंने कहा जी कि इतना बड़ा इदारा हमने 20 साल हो गए बनाया हुआ, इसमें 3000 या 4000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती, तो कंप्लेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिए। आज हम इधर लाहौर आए हुए थे पूरी टीम के साथ, तो हमने आज एप्टमा के साथ, जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, और उन्होंने और भी लोगों को, जिनिंग इंडस्ट्री वालों को, हॉजरी मैन्युफैक्चर वालों को, उनको भी बुलाया हुआ था। तो उनके साथ भी यही, और फिर सारे टैक्स ऑफिसर जो कस्टम के भी ग्रेड 20 और 21 के आदमी लोग थे, वो भी आए हुए थे, और दूसरे चीफ कमिश्नर वगैरह भी आए हुए थे। तो वहाँ सारे मामला डिस्कस हुए हैं कि मामले को, प्रोसीजर्स को बेहतर बनाना है, जो डिलेज होती हैं उनको दूर करना है, और जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मिटिगेट करना है, और कोशिश करनी है कि लोगों के मसाइल फौरी तौर पे हल हों। और जो लोगों को मुश्किलात आती हैं टैक्स देने में और रिफंड के केसेस में, जो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ज़्यादातर केसेस भी FTO में रिफंड रिलेटेड या IRS के आते हैं, तो उनको इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम वज़े करना है कि जिसमें कंप्लेंट, अगर आप कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी फौरी तौर पे दादरसी हो, उसके मुसीबत या उसका जो मसला है वो फौरी तौर पे हल हो। तो इंशाल्लाह मैंने काम शुरू कर दिया है अपने, और जो एडवाइजर्स हैं उनको भी बता दिया है कि यहाँ फेयर काम होगा। ऐसे ही नहीं कि खाम अफसरों के खिलाफ, मतलब कोई केस आ गया तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, काम मेरा यही है कि जो गलत काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनका एहतसाब होगा, उनको वार्निंग भी होगी, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम प्रपोज करेंगे। क्योंकि यहाँ जो है वफाकी टैक्स मोहतसब को एक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत हासिल है। मैं किसी के खिलाफ शोकाज भी ऑफिसर्स को कर सकता हूँ, और फिर उसके साथ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग है, वो भी हो सकती है, और 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर आपके हाथ बंधे होते थे, मैं आप ही के डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, कस्टम्स की, कि वहाँ पर स्मगलिंग की रोकथाम अगर सही मानों में कस्टम कर दे तो हमारी मईशत पे उसका बहुत असर पड़ेगा। क्या हम ये तवक्को रखें कि आप उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इसमें शेक हैंड होता है, यानी स्मगलर का भी और एंटी स्मगलिंग का भी। सिर्फ माल वही पकड़ा जाता है जिसका हिस्सा नहीं आता, उसके अलावा धड़ल्ले से सारा माल बिक रहा होता है, कंटेनर्स के कंटेनर्स आके लाहौर शहर में बिक जाते हैं। तो क्या हम ये तवक्को रखें कि वो काम जो आप कस्टम्स में रहते हुए नहीं कर सके, वो आप यहाँ बैठ कर वो इस्लाह करेंगे? देखिए जी, मैं शुजा साहब, मैं तकरीबन 2.5 साल
चीफ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ रहा हूँ। जी बिल्कुल। और मेरी जुरिस्डिक्शन में पूरा केपीके था, इस्लामाबाद था, समड़ियाल और गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ रह के हमने माशाल्लाह बहुत स्मगलिंग को कंट्रोल किया है। बॉर्डर्स पे हमारी प्रेजेंस थी और वहाँ मतलब पहले से बिलियंस के केसेस बने हैं, बहुत ज़्यादा हमने, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि स्मगलिंग जब रुक गई तो इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। यानी कोविड के बावजूद इस्लामाबाद में और पेशावर में जो है ना, और तोरखम बॉर्डर के जरिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्मगलिंग के हवाले से मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, सवाल करूँगा, लेकिन मुझे बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब से बात जारी रखेंगे लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिम महमूद जा साहब। डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्रेक से पहले कि जो आपने बतौर चीफ कलेक्टर वहाँ पे काम किया तो स्मगलिंग में बड़ी कमी आई। सवाल डॉक्टर साहब यही है कि अगर तो अच्छा ऑफिसर, एक नेक और दयानतदार ऑफिसर लग जाता है तो वो उस इदारे की साख, उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो हटता है उसकी जगह पे, यानी हम शख्सियात के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम हम यानी उम्मीद रखें आप वज़ा कर जाएंगे? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने काम उस पर शुरू कर दिया है, लोगों से सुजेशन लेनी शुरू कर दी है, ट्रेड बॉडी से मिलना शुरू कर दिया है। तो जो तजावीज़ आएंगी उनकी रोशनी में हम एफबीआर को कहेंगे, एफबीआर को डायरेक्ट करेंगे कि ये प्रोसीजर्स में ये फ्लॉ है, इससे ये प्रॉब्लम होता है, इसको इस तरीके से बेहतर करें। और फिर जब जो डायरेक्शन एफटीओ की डायरेक्शन होती है, आपको पता है कस्टम और आईआरएस वाले अगर लोग किसी से डरते हैं तो वो एफटीओ का, फेडरल वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा है कि वहाँ पेश भी, आज भी मैं रिव्यू पिटिशंस की हियरिंग कर रहा था तो उसमें सारे कलेक्टर लेवल के लोग पेश हो रहे थे। तो वो मतलब है इंशाल्लाह कि प्रोसीजर्स को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है और जल्द ही जो है ना इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ट्रेड बॉडी से भी मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मिलेंगे और लोगों से भी लेंगे। जर्नलिस्ट को भी हमने एडवाइजरी कमेटी बनाई है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, उसमें हमने जर्नलिस्ट को भी रखा है। तो इसी तरीके से मैंने आज एप्टमा में बात करते हुए उनसे कहा कि हम जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की बैकबोन है, कि हमारा एक अपना आदमी इधर आया है तो हमें इस इदारे का तावन भी मिलेगा और हम मिल के जो है ना टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कस्टम सर्विस से हैं, आपके बिल्कुल और में जो आपका ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का ऑफिस है। जी। डॉक्टर साहब, वहाँ पे होता ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े जिनके अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, वो तगड़े वकील कर अपील्स में जाकर अपने केसेस लिंगर ऑन करते हैं। उसके बाद कुछ अफसरान की भी मिली भगत होती है और इस तरह हम अरबों रुपए के टैक्स से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना, जबकि वो अभी इलेक्शन से पहले कि मैं टैक्स निज़ाम में इस्लाहत लाऊंगा, शायद 3 साल हो गए इसी वजह से वो नहीं आ सकी कि एक तो जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े नामबद वकला रखे की खिदमात हासिल कर रखी हैं, दूसरा कुछ अफसरान का रिस्पांस भी उसमें उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे जबकि बड़े बड़े वकला आपके सामने खड़े होंगे और उनका टैक्स? आज भी बड़े वकला पेश हुए हैं, बड़ा कोई ऐसा मसला नहीं है कि जब उनको वकला को पता चले कि अगला बंदा जो सुनने वाला है वो कौन है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह एफबीआर ने प्रोग्रेस किया है। एफबीआर की अगर आप देखें ना, रेवेन्यू कलेक्शन को देखें कि 4 ट्रिलियन तक पहुंची, अब तकरीबन 5 ट्रिलियन इस दफ़ा हो जाएगी। तो एफबीआर में ग्रोथ भी है, रेवेन्यू कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है, यानी बेहतरी है और बेहतरी की गुंजाइश आगे भी मौजूद है। तो जो कोलिजन है जो टैक्स ऑफिशियल्स की, उसको हमने पॉइंट आउट करना है, उसको इंशाल्लाह करप्शन के एलिमेंट को हमने कोशिश करनी है कि एलिमिनेट हो, और जो मिल के इस तरह के कारोबार में जो मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस तरह से विलफुल जो एक्ट करते हैं, उनको हमने पकड़ना है और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ होगा और उन्हें बाकायदा दूसरे इदारे भी जो हैं उनका भी तावन हासिल किया जाएगा। तो मुझे तो मैंडेट प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अपॉइंट किया है और सदर पाकिस्तान ने भी, और बाकी सारी जो इस वक्त जो माहौल है
वो यही है कि सही काम करने वालों को इनकरेज किया जाए और जो काम सही नहीं करता उसको अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी सोशल और जो समाजी खिदमात है उसकी बात करें, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि 16 कंटेनर्स गुड्स के जो थे, अशाए ज़रूरिया जो थी वो आपने अभी अफगानिस्तान भेजी हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोविड-19 में हमने देखा आपने बहुत काम किया, और उसके हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगा, और डेंगू के हवाले से कि इस वक्त डेंगू सर उठा रहा है दोबारा, और आप उसके हवाले से भी बड़े मुतहर्रिक थे जब पहली बार डेंगू का मर्ज हमने लाहौर में और पंजाब में हमें सुना था। उस हवाले से बताएं कि क्या कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी को काम कर रही है? बड़ा एहसान है जी कि मैं ये जो साथ सिलसिला है वेलफेयर का ये जारी है, ये गुज़श्ता 30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। इसी के अल्लाह पाक ने इसी जो इन काम करने की बिना पे 2 दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है मैं वाहिद ब्यूरोक्रेट हूँ जो जिसको दौरान सर्विस 2 दफ़ा, एक दफ़ा सितारा इम्तियाज़ और एक साल हलाल इम्तियाज़ मिला। तो ये काम है, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। 30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और फिर थर में हमने 1200 कुएं बनवाए हैं, बलूचिस्तान में 1100 से ज़्यादा हैंड पंप्स लगाए हैं, घर बना के लोगों को 1000 से ज़्यादा दिए हैं। आजकल हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं थर में झोंपड़ी से घर तक, यानी पहली दफ़ा जो झोंपड़ी में रहने वालों को हम अच्छा प्यारा सा एक घर बना के दे रहे हैं, एक कमरे का और बरामदा। और वो जो सदियों तक इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनको घर मिलेगा, उनको पक्के घर मिलेंगे। 500 घरों का मंसूबा है, अभी 60 के करीब घर हम बना चुके हैं। और इस तरीके से बाकी मेडिकल क्लिनिक्स हमारे 40-45 से ज़्यादा हैं सारे पाकिस्तान में, वो चल रहे हैं। और फिर बकरी पाल स्कीम वहाँ शुरू की हुई है, लोगों को सिलाई मशीनें ख़वातीन को लेके देते हैं। ये थर में? जी थर में। अच्छा। थर में फिर हमने अभी रेडी का एक सिलसिला शुरू किया है अपना रोज़गार स्कीम के तहत। इधर आपने देखी होंगी कि लाहौर में हमने बहुत सारे लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए रेडियाँ लेके दी हैं। यानी एक रेडी 19-20 हज़ार की बन जाती है, उसमें 4-5 हज़ार रुपये का माल डाल के हम देते हैं, और लोग जो है ना माशाल्लाह अभी आप देखेंगे। फिर हमारा डेली दस्तरखान है, डेली जो खाना इधर भी लाहौर में भी पकता है। इस्लामाबाद में भी हमारा मोबाइल हॉस्पिटल, कभी किसी जगह जाके हम खाना भी तकसीम करते हैं, और उसमें मोबाइल हॉस्पिटल भी है। कोविड की बात की तो पिछले 2 साल से हम कोविड के दिनों में हमने माशाल्लाह बहुत सारे ख़ानदानों में राशन पहुँचाया, बहुत सारे लोगों को हमने रोज़गार का बंदोबस्त किया, बहुत सारे लोगों की कैश में इमदाद की, और कई हज़ार फैमिलियों की हमने माशाल्लाह। और फिर कोविड के दिनों में हमारा ये शरबत जो है कोरोना प्लस सिरप, जिसमें हल्दी शामिल है, इसमें जैतून का ऑलिव ऑयल शामिल है, और इसमें शहद, ये बना के माशाल्लाह हमने किया। तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में बहुत काम हुआ है। तो आजकल जो है डेंगू का दौरा है, डेंगू पूरे पंजाब में और KPK में पंजे गाड़ चुका हुआ है, और हज़ारों लोग इससे मुतासर हैं। और डेली माशाल्लाह ये शरबत पपीता जो हमने बनाया हुआ है, ये पपीता के पत्तों का अर्क है, वो हमने बनाया है, और अर्क बना के इसमें 2-3 और हर्ब हम डालते हैं। ये 2012 से इस्तेमाल हो रहा है, और माशाल्लाह ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर मैं बिला मुबालगा इसे कहूँ कि ये प्लेटलेट बनाने की मशीन है। आपके प्लेटलेट 10,000 से भी गिर गए हैं तो ये आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगे, आपके बुखार आपका ख़त्म हो जाएगा, उल्टी आना आपका बंद हो जाएगा। तो पपीता के पत्तों में अल्लाह पाक ने इतनी रखी है कि इसमें एक एंजाइम है, पापेन नामी एंजाइम है, उसमें 212 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें विटामिन A, B, C, A, E और K होता है, और ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं, और आपके बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को जो आपका सिस्टम है उसको उसको बेहतर बनाते हैं। और फिर आपके प्लेटलेट्स जो हैं, आपके खून की जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में तो इनका बहुत अहम किरदार है। रोज़ाना सैकड़ों शरबत आप यहाँ से इस्लामाबाद से KPK में लाहौर में हमारा जो सेंटर है 449 जहाज़े ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं कि जो
नॉन अफोर्डिंग है उनसे हम एक पैसा भी नहीं लेते, बाकी जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आपके किसी मरीज़ को डेंगी है, आपके किसी मरीज़ को मतलब है डेंगी से शिफा नहीं, बहुत सारे मतलब अगर पेशेंट नेशनल हॉस्पिटल में या डॉक्टर हॉस्पिटल में दाखिल है, उनको जब पता चलता है कि वो जी बल्कि प्रोफेसर डॉक्टर जो है ना सजेस्ट करते हैं कि जाके वहाँ से ये पपीते का शरबत ले आओ, इससे अभी मैं कल असलम कमाल साहब जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनके घर में पपीते का पौधा लगा हुआ था, तो वो 2-3 दफ़ा नॉक हुआ तो लोगों ने कहा जी पपीते के पत्ते दे दे, तो पपीते के पत्तों में वाकई अल्लाह ने शिफा रखी है। जो भारत में तो बाकायदा प्रोपेलेंट्स जो बनाए जाते हैं वो भी पपीते के पत्तों से जूस निकाल के बनाए जाते हैं। जो मच्छरदानियाँ हैं उन्हें पपीते के पत्तों में भिगो के तैयार किया जाता है और फिर इस तरीके से जिस घर में पपीते का दरख्त हो वहाँ डेंगू मच्छर कम ही आता है। तो इसलिए ये शरबत पपीता डेंगू से बचने के लिए बहुत अक्सीर है, इसे इस्तेमाल करें। यहाँ से आप हमारा जो नुमाइंदा हैं जो सेक्रेटरी हैं हमारे मोहम्मद इशफाक, उनका टेलीफोन नंबर है 0300 941 7290, तो यहाँ से आपको फ्री मिलेगा, ये आप आके इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करें और कोई डेंगू का मरीज़ है तो उसे भी ये एड्रेस दे दें, तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे शफा होगी। और डेंगू का जिस तरह कोरोना आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है तो इसी तरीके से इंशाल्लाह डेंगू भी मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, उनसे हम बात कर रहे थे टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ तो काफ़ी बात हुई, अब हम उनसे बात करेंगे कि जो सर्विसेज है सोशल सर्विसेज जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने तज़किरा किया। डॉक्टर साहब सोशल सर्विसेज के हवाले से आपका सफ़र शुरू होता है शायद ज़लज़ला जो आया था बड़ा मशहूर 2005 का, वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद फिर आप थर में जो क्राइसिस पैदा हुआ उसमें आपने बड़ा काम किया, उसके मुतालिक थोड़ा सा आपने अभी बताया कि 1200 के करीब कुएं लग चुके हैं, वो भी जिक्र हो गया। इसके अलावा एक हमें आपकी सर्विसेज का अंदाज़ा हुआ जब रोहिंग्यन मुस्लिम्स का क्राइसिस पैदा हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान से जाने वाली शायद वाहिद ये सोशल सर्विस की NGO जो थी वो आप ही थे, और जब सीरियन मुस्लिम्स का क्राइसिस पैदा हुआ और वो तुर्की में आकर कई लाख सीरियन मुहाजिरीन जो है वहाँ पे आकर पनाहगज़ीन हुए, तो उनकी मदद के लिए भी आप ही तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में पहुँचे थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए जी माशाल्लाह हमने मुल्क में तो काम किया, जैसे आपने कहा कि 2005 के ज़िले से 2005 के वैसे तो 97-98 जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है ये काम शुरू कर दिया था। 94 में जो है सबसे पहली पोस्टिंग मुल्तान में हुई, वहाँ डिस्पेंसरी का आगाज़ किया, फिर फैसलाबाद 3 साल रहे। 97 में मैं लाहौर आया फैसलाबाद से ट्रांसफ़र होके, और फिर लंबा सफ़र है माशाल्लाह, मगर हमारे काम को महमीज़ मिली और जो ज़्यादा हुआ ना 2005 के ज़लज़ले उससे आपको एक्नॉलेजमेंट मिली? जी एक्नॉलेजमेंट भी मिली, फिर हमने काम भी बहुत किया कि पूरा हॉस्पिटल इकट्ठा करके हम जो पहुँचे रात कश्मीर मानसेरा बालाकोट में, और वहाँ हमने हफ्तों काम किया, फिर आते जाते रहे, कभी टीम लेके कभी उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं। उन जो शुरू में ज़लज़ले के दिनों में तो हमने काम किया रेस्क्यू के लिए, लोगों को रेस्क्यू भी किया, लाशें भी निकाली, उनको दफन भी किया, और बहुत ज़्यादा अजीब सूरत हाल थी उस वक्त, मगर वो अल्लाह पाक ने ऐसा कबूल किया कि फिर हमारा काम फिर सैलाब के जो सैलाब 2 साल मुसलसल आते हैं उसमें काम किया? सैलाब में हमने बहुत काम किया। 2005 का ज़लज़ला आया और फिर 2008 में ज़ियारत में ज़लज़ला आया, वहाँ जाके हमने काम किया। 2013 में आवरान में ज़लज़ला आया, तो आवरान में उस वक्त ये था कि अलहदगी पसंद थे बहुत ज़्यादा, जो है ना पंजाबियों को तो शनाख्ती कार्ड देखते थे, पंजाबियों को मार देते थे, तो हमने उन अलहदगी पसंदों के दरमियान रह के काम किया। मैंने अपनी टीम की खुद क़यादत की। रास्ते में हमारे आधे साथी तो डर के ही चले गए, हमारा फोटोग्राफर था वो चला गया, 2 मुल्तान से हमारे थे, उन्होंने कहा जी हम नहीं वहाँ नहीं आवरान नहीं जाएंगे। मैं गया अपनी टीम के साथ, तो हम वहाँ रहे, हमने वहाँ उनके साथ घर उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, वहाँ हमने रह के उनके लिए घर बनाए, 2 बड़ी मसाजिद बनाई। और फिर तो ये मैं आपको बताऊं कि वो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं,
وہاں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہماری ٹیم کو روزانہ وہ کھانا بنا کے دیتے تھے کہ جی یہ ہمارے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور تو یہ تو پنجابی اتنے اچھے لوگ ہیں، اور وہ پھر 6 مہینے بعد جب ٹیم وہاں سے نکلی تو وہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جہاں پاکستان بلوچستان کا ترانہ گایا جاتا تھا وہاں پاک سر زمین شاد باغ کا ترانہ ہم نے ان لوگوں نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پنجاب کے لوگ، یہ پاکستان کے لوگ، یہ تو بہت اچھے ہیں۔ تو پھر 2013 کے بعد 2010 میں سیلاب آیا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو ہم نے وہاں بڑا کام کیا۔ وہاں ماشاءاللہ ہم نے جب 20 فٹ نوشہرہ میں پانی تھا اس وقت ہم وہاں پہنچے، اور وہاں جا کے پھر ہم نے پہلے تو ریسکیو ریلیف کا کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے گھر بنانے شروع کیے۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تقریباً ہم نے سیلاب زدگان کو 1000 کے قریب گھر بنا کے دیے، بڑی بڑی مساجد بھی بنائی۔ نوشہرہ میں ایک ایسی مسجد کی بنیاد ہم نے رکھی جو 500 سال پرانی تھی اور بالکل واش ہوئے، آدھی مسجد دریا کابل میں تھی اور آدھی باہر تھی، وہ ہم نے مسجد بنائی۔ وہ ماشاءاللہ وہاں پھر 2009 میں IDP کا کرائسس ہوا، سواس سے لاکھوں لوگ اٹھ کے آگے، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ پھر 2014 میں نارتھ وزیرستان کا ایک کرائسس ہوا، وہاں بنو میں اور نارتھ وزیرستان میں جا کے ہم نے وہاں کام کیا۔ اور پھر 2004 میں ڈراؤٹ آیا، قحط آیا تھر میں، تو ہم پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ پانی مین مسئلہ ہے، تو ماشاءاللہ پانی کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر ہم نے پہلے 1 کنواں بنا، پھر 10 کنویں بنے، پھر 50 کنویں بنے، 50 سے 100، اور ماشاءاللہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کر سکیں گے۔ اور اب تو وہاں فصلیں سنا ہے کاشت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ پھر ہم نے گرین تھر شروع کیا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہماری زمین 10 ایکڑ پڑی ہے، صدیوں سے پڑی ہے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کو ہم سیراب کر سکیں، پانی کا بندوبست کر دیں، سبمرسیبل پمپ لگا دیں تو ہم جو ہے نا اس کو سیراب کر سکیں گے۔ اور ورجن لینڈ تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں ماشاءاللہ دنوں میں ایسے ہوا کہ لہلاتے کھیت بن گئے، اور وہ 200 ایکڑ تقریباً 200 گرین فارم ہم بنا چکے ہیں 1000 ایکڑ رقبے پہ۔ وہاں گندم بھی پیدا ہو رہی ہے، چارہ بھی اگ رہا ہے، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ پانی بھی مل رہا ہے اور لوگوں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا، بکری پال اسکیم ہم نے شروع کی، لوگوں کو اب گھر سے جھونپڑی سے گھر تک ایک اسکیم کے تحت ہم نے گھر بنا کے دینا شروع کیے، معذوروں کو، بیواؤں کو۔ ہم تقریباً 60 کے قریب گھر بنا چکے ہیں، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں 500 گھر تک ہم بنا دیں گے۔ اور پھر اس طرح کنویں بنانے کا، گرین تھر فارم بنانے کا، چھوٹے ہینڈ پمپ لگانے کا، اور بڑے ڈی بورڈ ہینڈ پمپ لگانے کا، یہ سلسلہ ماشاءاللہ تاحال جاری ہے۔ اس وقت بھی میری ٹیمیں موجود ہیں بلوچستان میں، اور ادھر ہرنائی میں پچھلے ہفتے زلزلہ آیا تو دوسرے دن ہی میں نے ماشاءاللہ اپنی ٹیم کو مینیج کر لیا کہ کوئٹہ سے ہی کو جو کسٹم کے لوگ تھے ان کو وہ جو پیسے بھجوا دیے، تو 200 فیملیوں کو راشن پہنچایا۔ اور پھر روہنگیا مسلمانوں کا جب مسئلہ ہوا 2017 میں، تو ہم نے وہاں ماشاءاللہ وہاں کی NGOs کے توسط سے ان کو ریلیف پہنچانے کا کام کیا۔ آج 4واں 5واں سال ہے کہ مسلسل ہمارا ریلیف پہنچ رہا ہے۔ عید پہ بھی ہم عید پیکج بھجواتے ہیں، ونٹر پیکج بھجواتے ہیں۔ اور پھر سیرین ریفیوجیز کا جب مسئلہ ہوا تو میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، ایک ٹیم کے ساتھ اشفاق اور میرا بیٹا گئے، اور وہاں جا کے وہاں بھی ہمارا مستقل رابطہ ہے۔ اور پھر افغانستان میں جب اب طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہاں بھی ایک کرائسس شروع ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں 7 لاکھ لوگ قونصل جنرل آئے ہوئے تھے پچھلی جمعرات کو، ہم نے 7 کنٹینر جو کروڑوں روپے مالیت کے تھے وہ بھیجے، اور پاکستان سے جانے والی یہ سب سے بڑی کنسائنمنٹ ہے، اور جی امداد ہے جو وہاں پہنچی ہے۔ اور وہاں کے وزیر داخلہ جو ان کے حقانی صاحب، انہوں نے وصول کیا اور پاکستان کا حکومتی لیول پہ شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی میں نے اور بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم راشن پیک بھی تیار کر رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں بیچارے کھلے آسمان تلے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی کیمپس ہیں، تو نہ کوئی ان کے لیے رہنے کی پراپر جگہ ہے، کھانے پینے کی بھی اشیاء کی کمی ہے۔ ایک بڑا انسانی المیہ جنم لینے والا ہے، اللہ کرے مطلب دنیا کو آ جائے، دنیا کو خیال آ جائے ان کا اور وہ ان کی مدد کریں۔ مگر ہم انشاءاللہ جو ہے نا اپنا سلسلہ میں نے سلیپنگ بیگز کو 10,000 بنوانے کا کہہ دیا ہے، کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ جیکٹیں وغیرہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک کنسائنمنٹ جولائی میں ہم نے، جب ابھی طالبان نہیں آئے تھے تو ہم نے
दवाइयों की एक बड़ी कंसाइनमेंट 7 कंटेनर रवाना किए थे तोरखम से, और बाकी तोरखम में माशाल्लाह जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जो है वहाँ से इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, पहले से ज़्यादा आसानी के साथ मामला जारी हैं। तो अल्लाह करे मतलब है वहाँ ये लोग जो मजबूर हैं उनकी मदद करना इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से भी कि जो लोग मदद उनकी करना चाहें वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि सामान दूसरे मुल्क भिजवाना खासा मुश्किल काम है, तो उस सिलसिले में हम मदद भी कर सकते हैं। हम खुद भी, हमारी नेक्स्ट कंसाइनमेंट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार होगी, तो हम अपने अफगान मुसलमान बहनों भाइयों की मुसीबत की इस घड़ी में हर लिहाज से हम मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, कोई जो आपकी मेडिकल टीम्स जाती हैं उनका भी कोई इरादा है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे अभी क्राइसिस पैदा हुआ है? वहाँ प्रॉब्लम ये है ना, फिलहाल तो हुकूमती लेवल पे तो जा नहीं सकते ना, वो जिस तरीके से जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, मगर अगर हमें इजाज़त मिली तो हम तो जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास मोबाइल हॉस्पिटल भी हैं और दूसरा इंतज़ाम भी है, तो हम वहाँ जाके वहाँ काम करने के लिए, हो सकता है टेक्निकल टीम मेंबर कस्टम बता रहे थे कि वहाँ से ऑफर आई है। हमारा पाकिस्तान के एम्बेसडर जो मंसूर अली खान है उनके साथ रब्ता है, तो अगर मौका मिला तो मैं आई वुड लव टू गो विद माई टीम ना, इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ जाके जो भी हो सका हम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो सीरियन और रोहिंग्यन मुसलमानों के लिए यहाँ से आपने बहुत बड़े पैमाने पर इमदाद भिजवाई, तो अभी ये मुझे पता चला कि रोहिंग्यन मुस्लिम की तो अभी तक इमदाद जारी है आपकी तरफ से? जी माशाल्लाह जारी है। हम हर दफ़ा जो है ना, अभी ईद आई थी, ईद उल अज़हा के दिनों में हमने कुर्बानी के लिए रकम भिजवाई, हमने अपील की थी, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने गाय की कुर्बानी के लिए, किसी ने बकरे की कुर्बानी के लिए। इसी तरीके से अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों का विंटर पैकेज उधर भिजवाएंगे। तो माशाल्लाह ये इमदाद का सिलसिला जो है ना हमारा, ये एक है कि जो हम शुरू करते हैं वो उसको कंटिन्यू भी रहता है। अमरान में 2013 में गए थे, मगर अभी तक इमदाद का सिलसिला जारी है। 2009 में स्वात में आईडीपी क्राइसिस हुआ था, मगर उस वक्त हमने लाहौर स्वात मैटरनिटी होम 2009 में तख्तबाई में कायम किया था, जो अभी तक चल रहा है, अभी तक वहाँ के लोगों को टेक फॉर कर रहा है। तो इस तरीके से माशाल्लाह मैंने जैसे बताया कि हमारे मोबाइल हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, वो दस्तरखान डेली यहाँ लाहौर में भी सैकड़ों लोग ला के रोज़ाना खाना खाते हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद में बाराको में हमारा खैराती चैरिटी हॉस्पिटल भी है, और ये डेली दस्तरखान का और दूसरे सिलसिले भी जा रहे हैं। मैं भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बाराको जाके मरीजों को देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, आपके कीमती वक्त का। यकीन माने जब भी डॉक्टर आसिफ महमूद साहब से मिलता हूँ तो जो मुझे मायूसी और तारीकी के बादल इस वतन अजीज़ पे छाते नज़र आते हैं, मुझे उनमें कोई रोशनी की किरणें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब चाहे कस्टम सर्विस में रहे, वहाँ पे इन्होंने जिस तरह किरदार अदा किया, और अब जैसे इनको वफाकी टैक्स मुतसिब तैनात किया गया, मुझे यकीन है यहाँ पे भी ये उसी तरह किरदार अदा करेंगे। लेकिन इनकी जो सोशल सर्विस है, जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि रोहिंग्यन मुस्लिम हो, सीरियन मुस्लिम्स हो, उनके लिए भी जिस तरह इन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इमदाद की, और अब अभी आज मुझे पता लगा कि अफगान जो हमारे भाई हैं जो इस वक्त वहाँ खुले आसमान तले पड़े हैं, जिस तरह ये उनकी इमदाद कर रहे हैं, यकीन मानिए दुआ है कि पाकिस्तान में इस जैसी बहुत सारी शख्सियात अल्लाह ताला पैदा करे और उनके दिलों में दर्द पैदा कर दे। जैसे डॉक्टर अब्दुस्तार ईदी थे, जैसे डॉक्टर आसिफ महमूद साहब हैं, इस तरह के कई ऐसे लोग पैदा हों जो जिनकी वजह से तारीकी और घुटन का एहसास होता है, उसमें कमी वाक़या हो सके। अपने होस्ट याश को प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।